نے بہت ساری چیزیں جسٹیفائی کی ہیں کہ بہت سارے شاید سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ریپس میں آ جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وچ از ٹرو, غلط نہیں ہے. لیکن جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں نا کہ ایک معاشرے کا ایک بیہیویئر ہے تو وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس نہیں ہے. صحیح کہا. یہ تربیت کا فقدان ہے ایکچولی. یہ وہ فرسٹریشن ہے, یہ وہ لائک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیولپ کیا گیا. آپ خود دیکھو ایک اسلامک اسٹیٹ میں جہاں پہ ماں بہن کی گالی کو مذاق کے طور پہ استعمال کیا جائے, مزاح لیا جائے اس سے, اس قوم کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی ہم لوگ ڈیولپڈ ہی نہیں ہیں. لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ یعنی ماں باپ سے ریلیٹڈ گالیوں سے گٹر کی طرح کا ہے اور اس سے پھر مزاح اٹھاتے ہیں. دوسری ایک بات جو ہے ہماری سوشل لرننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آدمی ہم سے یا میل جو ہے اس کا مقام بہت برتر ہے, وچ از ٹرو, یہ بھی ٹھیک ہے. مگر وہ برتر کیوں ہے آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھایا. برتری رائٹس پہ نہیں ہے, حقوق پہ نہیں ہے. حقوق دونوں کے ایک جیسے, عورت ہو یا مرد ہو. جس معاشرے میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گے جی آدمی عورت سے برتر ہے, وہاں پہ آپ اس سے بھی زیادہ برے حالات کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. بیسیکلی جو برتری ہے وہ ڈیوٹیز کی ہے, وہ رسپانسبلٹیز کی ہے, وہ آنسریبل ہے. مگر یہ بات آج تک نہ کبھی کسی ماں نے سمجھائی, نہ کبھی کسی باپ نے, نہ کبھی کسی ٹیچر نے, اور نہ کسی ریلیجیس اسکالر نے بتائی کہ بھائی برتری ہے کیا. برتری رائٹس کی نہیں ہے, رسپانسبلٹیز کی ہے. آن دا ادر ہینڈ جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی آپ دیکھو کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے, اس باپ کے کندھے کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے مبارک ہو تمہارا بوجھ بڑھ گیا ہے. یعنی بیٹی کا ہونا جو ہے وہ باپ کے بوجھ کے بڑھنے کا احساس دلانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. یہ مختلف قسم کے کومنٹس دیے جاتے ہیں. معاشرے میں عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جائے, اس کو انسان نہ سمجھا جائے. یہ معاشرتی رویے بلا شبہ ہمارے ہاں ہیں اور بہت زیادہ کامن ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں پھر ایسے بیٹے جو درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں, وہ ان کے ہونے پہ کیا پراؤڈ کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. میں یہی بات کہوں گی کہ جب ہم درندگی کی بات کرتے ہیں نا تو اصل بات یہ ہے کہ نہ تو مائیں سکھاتی ہیں کہ عورتوں کی کیا عزت ہے, کیونکہ مائیں ہی خوش ہوتی ہیں نا بیٹوں کی پیدائش کے اوپر. مائیں ہی خوش ہوتی ہیں, اوہو میرا سر جو ہے بہت اونچا ہو گیا, میری خاندان میں عزت بڑی بڑھ گئی. ٹھیک. اور نہ ہی باپ یہ سکھاتا ہے کہ اس نے عورت کی عزت کیسے کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی ماں کو بھی ابیوز کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی ابیوز کرتا ہے. اور بیٹی تو خیر یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کے گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب گھر میں عورت کو عزت نہیں دی جا رہی, تربیت پہ ماں نہیں فوکس کر رہی, باپ نہیں فوکس کر رہا, تو یہ سب چیزیں آگے چل کے ایگزیکٹلی. اور میں تو یہاں پہ یہ بھی بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, یہاں پہ ہماری 5 سال کی بچی پیدا ہوتی بچی محفوظ نہیں ہے. ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جی ریسنٹلی جو ہمارے پاس اتنے زیادہ قصے آئے کہ راولپنڈی میں ایک بچی کو گلی کے اندر, یعنی یہ کون سی مینٹل آپ النس اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ مینٹل النس نہیں ہے, یہ ایکچولی یہ ویلیوز کا فقدان ہے, تربیت کا فقدان ہے. اور نہ صرف میں سمجھتی ہوں ان لڑکوں کو جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے, میں تو سمجھتی ہوں ان کے ماں باپ کو بھی پینلٹیز دینی چاہیے. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں جی ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی یہ والی جو نیوز چل رہی تھی نا کہ جی کسی نے کمنٹ کیا اسی لیے تو شریعت کہتی ہے کہ عورت اکیلے باہر نہ جائے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ کیا شریعت جو ہے وہ صرف عورت کے لیے ہے؟ وہ جو اس کے ساتھ زنا کرنے آئے تھے ان کے لیے شریعت کہاں گئی تھی؟ وہ شریعت کے حکم کیوں نہیں کر سکے؟ اور عورت جب اگر تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کس مجبوری میں اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا, بھائی اویلیبل نہیں تھا, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے اس نے اپنی ذمہ داری قبول کرتے کیس ہے. یہ سی سی پی او صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ایسی سامنے آ رہی ہیں. یہ چیز تو انتہائی جو ہے مضحکہ خیز ہے. بہت سارے گھروں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, بہت سارے رشتے دار اس طرح کے واقعات میں. آپ کے ملک میں آپ جو ہے آپ اگر اس کو شریعت بھی کہیں گے نا تو شریعت پھر کھلے عام یہ حکم دیتی ہے کہ وہ بندہ جس پہ زنا ثابت ہو جائے اس کو سنسار کیا جائے. تو آج کل آج تک اس اسلامک ریاست میں تو آنیسٹلی میں تو آئی کے صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, آئی ایم سو افینڈیڈ آف دس تھنگ کہ ہم نے آپ کو اس لیے الیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کل, ہماری عورتیں کل بھی ایسے تھیں, آج ان کی حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے تب بھی ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایک زینب والا کیس ایسا کیس تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا اور اس وقت اتنا اچھا ہمارے پاس ایک سٹانس تھا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, مگر صرف کیا ہوا, ایک زینب بل پاس کر دیا گیا.
क्यों नहीं उस बंदे को शरेआम लटकाया गया? जिस मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट नहीं होती वहां पे क्राइम किसी भी नौयत का हो सकता है और कोई भी कर सकता है। जब आपको पता है कि जी मैं क्राइम करूंगा, मुझे मैक्सिमम 7 साल की सजा हो जाएगी, यानी एक औरत की इज्जत की कीमत 7 साल की सजा है। एंड सेम गोज फॉर दिस कि जब एक औरत अपनी ये वाली लिबर्टीज को इस्तेमाल करती है कि वो किसी इंसान से शादी करने के लिए इनकार करती है और लोग फिर उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, यानी उसका वो शरई हक जो उसको इस्लाम ने ही दिया हुआ है उसके ऊपर भी उसको अब्यूज किया जाता है। और फिर कानून आपका क्या करता है कि आप उसको 7 साल की सजा देके आप पीछे कर देते हैं। अगर शरीयत की बात करते हैं ना, तो फिर शरीयत तो ये कहती है कि कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, और जब जुर्म साबित हो जाए तो फिर संसार की सजा होनी चाहिए। तो आई रियली डिमांड, और सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट सुन के तो मुझे शर्म आ रही थी कि यानी औरतें कैसे तैयार होके जाएं घरों से। आपकी अपनी बेटी अगर होती खुदा ना खास्ता, तो फिर मैं देखती कि कौन सा हदूद अरबा आप नापते कि ये कौन से थाने की हदूद में आता है, ये कौन सी। अगर केपी में भी इनके खानदान की किसी इवन मुलाजमा के साथ कुछ होता नहीं, इन्होंने केपी तक पहुंच जाना था अपना। मगर एक आम औरत जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकली है, उसके लिए आप हदूद मुतय्यन करने की कोशिशें करेंगे किस थाने में आते हैं। यानी ये इस माशरे की इखलाकियात की, मैं कहती हूँ जो इंतहाई गिरी हुई चीजें हैं ना, ये वो हैं। और ये आप देखो, और इस चीज को आप किसी तौर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो खवातीन जो कि घरों में हैं वो महफूज रहेंगी। घरों में बहुत सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं जिसमें खुद रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं, वो खवातीन फिर किस तरह से महफूज हैं? क्या उनसे भी आप सवाल करेंगे? क्या उनसे भी आप ये कहेंगे कि इस रिश्तेदार को घर आने दो, इसको ना आने दो? तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है। ताहिरा, आपने कहा कि इसमें आपकी तरबियत, आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, यानी फिर हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमारी घर की माएं खुद जिम्मेदार हैं, इस तरह के बच्चे जो हैं जिनका माइंड सेट वो ये बना रही हैं, रोक रहे हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? मुमकिन क्या? सिर्फ अना माँ बाप बिल्कुल जिम्मेदार हैं और 100% जिम्मेदार हैं, मगर माँ बाप के बाद जो है समटाइम्स बहुत अच्छी फैमिलीज की बच्चियों के साथ बहुत कुछ होता है, हमने देखा है। और बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के घनौने जराइम में मुलविस नजर आते हैं हमें। बात यह है कि जब तक लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगी ना, जब तक किसी एक को इबरत का निशान नहीं बना सकते हो आप, तब ये भूल जाओ कि आप जो है आप कभी इस चीज को रोक भी पाएंगे। रोक तो हम कभी नहीं पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये कभी रुक नहीं सकते। एक चीज जिसका मैंने बहुत ज्यादा, जो मैं इस चीज को देखती हूँ कि हमने कुछ चीजें मॉडर्निज्म के नाम पर, फैशन के नाम पर ऐसी बना ली हैं जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा अफसोसनाक नताइज सामने आते हैं। उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। नफ्सियाती मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, इन मामलात को हमने रोकना किस तरह से है। असल मकसद ये मसाइल डिस्कस करने का भी यही है। ताहिरा, मुझे ये बताएगा, हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमने इसके हल की तरफ जाना है। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने अपनी रूटीन लाइफ से खत्म करके एक हेल्दी खानदान बनाना है, और ऑब्वियसली फिर ही हेल्दी मुआशरा बनेगा। बिल्कुल ऐसा है अना। सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, मैं ये कहूँगी कि जो हम जिनसी तफरीक करते हैं ना, बेटी की तरबियत और पैरामीटर्स के ऊपर और बेटे की तरबियत और पैरामीटर्स के ऊपर, जबरदस्त पॉइंट है ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। रोज नजर आ रहा है, अच्छा बेटा आपका किसी उस तरह की सरगर्मियों में आपको मसरूफ नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं ओके ये लड़का है, लड़की को ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें आपको सबसे पहले खत्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों इंसान हैं। आपने इंसानों की तरबियत करनी है, आपने सिर्फ लड़की और लड़के की तरबियत नहीं करनी। आप जब इंसान की तरबियत करेंगे ना, तो रोल्स तो नेचर खुद ब खुद डिफाइन कर देती है और वो चीजें आगे चलना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद। दूसरी बात जो है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात कहती हूँ, बहुत सारे लोगों से इस बारे में फिर नेगेटिव फीडबैक्स भी लेती हूँ। हमारे यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है हमारी जरूरत बन गई है, और वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन ये नहीं है कि आपने बच्चे को बेराह रवि की तरफ दिखाना है। मैं बहुत सारे टाइम पे, जब मैं खुद ट्रेन कर रही होती हूँ माँ बाप को और टीचर्स को, तो मुझे सबसे पहला सवाल जो सुनने को मिलता है वो ये है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। फॉर गॉड से, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। आप इस्लाम को समझते नहीं, आप इस्लाम को जानते नहीं है, इसलिए आपने ये कह दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। आप कुरान को अगर तर्जमे से पढ़ेंगे ना, मैं रीइंफोर्स करती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को कुरान को तर्जमे से पढ़ाए ताकि उसको समझ और अकल हो। आपको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन खुद से देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान इसके बारे में बात करता है। कुरान आपको सब कुछ चीजें जो है बताना शुरू कर देता है। कुरान की तरबियत जो है ना, जब आप स्कूल बड़े बड़े देखते हैं ना, ऑब्वियसली आप तालीम जब बच्चे को देंगे तो ये सब चीजें तालीम में आ जाती हैं। बिल्कुल, आप स्कूलों से डिमांड करें कि आप उनके स्कूल्स में बच्चों को कुरान पाक तर्जमे से पढ़ाया जाना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
सेल्फ डिफेंस बच्चियों को और बच्चों को दोनों को ही सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भी स्कूल का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। एंड फॉर गॉड से 5 साल 6 साल बच्चे की तालीम से, बच्चे की तरबियत के ऊपर फोकस करें। तालीम उसने देख दूख के जब उसको चीजें आप सिखा रहे होंगे ना, उसने सब कुछ सीख जाना है। उसकी तरबियत जो वो चीज है जो माँ बाप ने देनी है, जो टीचर्स ने देनी है और जो मास्टरे ने देनी है। एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये कि आप जब अपने घर में लड़ाइयां आपस में लड़ रहे हो, बच्चों के सामने अपनी घर की औरत को और औरत अपने घर के मर्द को गाली गलोच बुरा भला मत कहें, क्योंकि बच्चे सुन के नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। जो आपका बच्चा आपको देख रहा है वो वही कल को अपने आने वाले पार्टनर के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी स्कूल फेलोज के साथ वो करेगा। ये बिल्कुल आप सही चीजों की तरफ निशानदेही कर रही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक तो वो खवातीन जिनको रेप केसेस हैं, जिनको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, हम मुआशरे में उनको अछूत बना देते हैं, हम खुद उनसे बात करते हुए कतराते हैं। अब वो लोग क्या करें, उनके पास तो जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और फिर हम कहते हैं हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहां पे वो बंदा जो कि मजलूम है उससे लोग नफरत करते हैं और जो जालिम है उसके लिए बड़ी दलीलें और उसको सेव करने के हजारों तरीके हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। और सेम इस केस में ये हो रहा है कि जिसको जुल्म का निशाना बनाया गया आप सवाल उससे कर रहे हैं और जो जिसने जुल्म कर दिया वो खुलेआम यानी आप देखो 2 बच्चे हैं ना जिन्होंने अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, बिल्कुल क्या स्टेट ऑफ माइंड है और वो क्या किस तरह की पर्सनैलिटी। और मैंने देखा है जो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, क्योंकि मैं खुद ट्रीट करती हूँ उन लोगों को, मैंने देखा है वो बच्चे पूरी जिंदगी उनकी पर्सनैलिटी वापस नहीं आती, वो अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, कॉन्फिडेंस उनका इतना शेक होता है, इवन अपने बच्चों के बारे में वो इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो कहीं भी उनको महफूज नहीं समझते अपने, और इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी उनको यकीन नहीं आ पाता। पढ़ाई और जॉब्स तो बहुत दूर की बात है, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मस्क हो जाती। और फिर किसी एक टाइम के ऊपर ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं तो समझती हूँ माएँ पता नहीं क्या माएँ हैं भाई, आप कौन लोग हो तुसी, मुझे तो ये कहना पड़ता है कि आप कौन है कि आपकी बेटी अगर आपसे आके अपनी चीजें शेयर करती है ना तो आप उसको छुपाने की कोशिशों में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो चाचा मामा ताया जो है उसको आप कुछ कह नहीं सकती। और वो चाचा मामा ताया क्योंकि उसको पता ये बात एक्सपोज नहीं होनी कहीं पे भी, तो वो धड़ल्ले से आज इस बेटी कल उस बेटी, सारी बच्चियां जो खानदान की होती हैं और इवन बच्चे जो खानदान के होते हैं उनको अब्यूज करते रहते हैं। एक दफा की ओपन की हुई बात, एक दफा का कदम उठाया हुआ, आपकी बेटी तो चले विक्टिम बन गई, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे के वो बेहतर तौर पे सरवाइव कर सके और आप उसको सपोर्ट कर सके, मगर आप और बहुत सारी खानदान की बच्चियों को बचा सकते हैं। मगर औरतें अपने डर में, और डर क्या होता है भला, हस्बैंड नहीं बात मानेगा, यानी डाइकोटमी ये देखें कि आप अपने बच्चे को नहीं एतबार करते, आप दूसरों को ज्यादा एतबार करना शुरू कर देते हैं। सो ओवरऑल जो चीजें हमें करने की जरूरत है, तरबियत घर के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, और लॉ एनफोर्समेंट के बगैर ये चीज नामुमकिन है। जब तक गवर्नमेंट इस चीज का एक्शन नहीं लेगी, डंडा नहीं उठाएगी, डंडे की कौम है। एंड आई रियली डिमांड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस्मान बुज़दार MCCP ऑफ लाहौर, आपको जवाब देना है जो इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज मोटरवे मेरे जैसी लड़की जो कि जॉब करती है, मेरे लिए वो सेफेस्ट वे था, लेकिन अब शायद मैं भी जाते हुए डरूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ हो ना जाए, तो ये आप बन चुका है। बिल्कुल आपने सीखा। थैंक यू सो मच ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि होश से वालिदैन जो कि दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अपने घर देखें बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। रियासत से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, यहां इंसाफ मिल जाए तो बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत से, लेकिन आपने अपने आप को महफूज रखना है, अपने आप को बचाना है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए। खुदारा ये वक्त की अहम जरूरत है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।